We do have a very special guest now joining in. Mr. Dharmesh Shah, the head of derivatives and quant research at ICICI Securities, is with us. Remember, ICICI Securities and ICICI Direct, it's a trusted brand with which you can live the Ant life. That is, meet your aspirations with research-backed investments. Warm welcome to you, Dharmesh, and good to have you with us on this very special edition. You know, we were talking to our colleague Chetan. You would have heard a part of it as well, as to what could be the big expectation from the upcoming budget. Let's first understand that, and then we'll go on to understanding all the questions that are coming in from our viewers for you right ahead of the budget. Your own sense of which are the key sectors that will be getting importance and will be benefited from the upcoming budget. Good afternoon, first of all, and thank you for inviting me on your show. Yes, definitely. I think so. Looking at the budget, I think so. It looks like I think so more promising budget likely to be. Yeah, we don't expect any major changes happening in budget, which we have seen in the supplement budget. So nothing major change we expect in this current budget. Yes, definitely focus will be definitely on infrastructure. I think so. The one capex related industrials. I think so. The one we should be in focus to. So infrastructure, capital goods is two sectors where definitely I think so government focus. Apart from that, defense, railways, where the capex program was announced in supplement budget. I think so. We don't see any major changes in terms of allocation happening in infrastructure and defense. So defense, railways, capital goods as a sector remains to be the positive for. Apart from that, again, I would like to highlight tourism as a sector can also be one highlight where possibility of infrastructure status, which is a long waited demand from the industry. I think so. Anything on those side coming positive, I think so, can be one where tourism as a sector can be looked out for. Apart from that, again, tourism, infrastructure, capital goods are the ones which remain to be positive for. But banking as a financials are the ones where again we remain to be positive for. So, in I know, I think so. It's expecting something a good budget from uh, 2024, but yes, infrastructure, I think so, should be the major theme of this budget for 2020. Okay, chaliye. We do have a caller with us, Dharmesh ji. So let's take in the question. This is from Pondicherry. RP Raya has Dr. RP Raya is with us. Dr. Raya, very good afternoon to you. Tell me, what's your question? How can we help you today? Dr. Raya? Okay, I think there is some connectivity issue, but Mr. Raya, we'll take ahead your question, Dr. Raya, and this question is on Wipro. Dr. Raya wants to know from you, sir, 2,500 shares of Wipro is what he has. He's bought it at 561.9 rupees. Now, he is a very short-term trader. What should his ideal strategy be? Because the stock has seen a sharp decline after disappointing earnings, what should his strategy be? Yes, so the numbers seems to be disappointing, and that's also the result of a crackdown thing for Wipro. But yes, definitely a strong support is placed at around 495, 496 for Wipro. So if he has a position from the medium term, yes, in the short term, we don't expect any V-shaped recovery in Wipro. It should be a more of a U-shaped recovery. So maybe more likely it will take long of time in the current quarter to come towards 560, 570. So yes, the major support of 545 was broken. So we don't expect any major recovery. Yes, 495 is something a support for Wipro. So any bounce towards 525 to 530 should be looked as an exit opportunity. Okay, got that. So Dr. Rarya's question is addressed. In case you're watching this show, then you can go ahead with this view. The next question is from our YouTube viewer Gautam Mehta. ये पूछ रहे हैं डेली ट्रेड के लिए कौन सा स्टॉक सही रहेगा सर? डेली ट्रेड के लिए क्या अभी हाल फिलहाल में आपके चार्ट्स में कोई स्टॉक ऐसा दिखाई दिया है जहां पर अभी भी डेली या इंट्राडे ट्रेड करना चाहिए, या फिर अभी आप इसे अवॉइड करने की सलाह देंगे? डेली ट्रेड में देख सके आज का दिन देखे तो मार्केट काफी वॉलेटाइल है. इट हैज बीन वेरी वॉलेटाइल from the starting of the day 9:15. But yeah, there's a sector to talk for. Definitely fertilizer space है या auto space है जहाँ पे एक अच्छी momentum हम देख रहे हैं इंट्राडे. And apart from that, again, stocks like L&T is one can look out from the intraday perspective.
चलिए ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। ये भरत जैन का सवाल है, एनएचपीसी या आईआरएफसी में क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर अभी भी होल्ड कर कर चलें? बहुत डिटेल्स तो धर्मेश जी इन्होंने हमें नहीं दी हैं भरत जैन ने, लेकिन बजट से पहले जिस तरीके का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जो लोग प्रॉफिटेबिलिटी में हैं, क्या सही रणनीति होगी? इन दोनों स्टॉक्स ने तेजी दिखाई है हाल फिलहाल की तेजी में, आईआरएफसी और एनएचपीसी। बोथ द स्टॉक्स में देखिए तो एनएचपीसी और आईआरएफसी दोनों में अच्छी तेजी हमने देखी लास्ट 4 से 5 महीने। और डेफिनेटली आई थिंक सो बोथ द सेक्टर्स आर इन लाइमलाइट। अगर रेलवे की बात करें तो यस, आईआरएफसी हैज बीन लाइमलाइट एंड द वे द थिंग्स आर पैनिंग आउट फॉर आईआरएफसी लुक्स पॉजिटिव फ्रॉम द मीडियम पर्सपेक्टिव। तो डेफिनेटली आईआरएफसी होल्ड करना चाहिए 185 के स्टॉप लॉस के साथ। और ऊपर में टारगेट की बात करें तो 224 टू 25 का टारगेट देख सकते हैं आईआरएफसी। रही बात एनएचपीसी, तो एनएचपीसी में अगर आप देखेंगे तो पावर एज अ सेक्टर ने long decadal breakout there. When I talk about long decadal breakout, is something like 10 years, 12 years breakout has been panning out in power space. So we remain to be constructive, positive for NHPC and as a power sector as a whole. So NHPC particular की बात करें तो definitely long decadal breakout NHPC में भी हुआ है. We are not negative. Yes, short term the run up has been too sharp from 100 to 115. So what we see is currently is a more of a retracement happening of a rise. Yes, strong support in the place at around 100 200, and a dip towards those levels should be looked as a buying opportunity or target of 125 to 100. Okay, got that. Let's go across to Lucknow now. We have the next caller with us. Anand Kumar is now with us. आनंद जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है? नमस्कार मैम। मैम मेरा सवाल है मैम एचएफसीएल पर। मैम बाइंग प्राइस है 133 की। ठीक है, और अभी आप मैम और इसमें खरीदना मैम चाह रहे हैं? यस मैम और खरीदना चाह रहा हूँ और इसको विद इन टारगेट एंड स्टॉप लॉस ठीक है, फॉर 1 ईयर एंड सेकंड स्टॉक इज एक्साइड। बाइंग प्राइस इज 578। ठीक है, दोनों ही स्टॉक्स के ऊपर मैं आपको राय दिलवा देती हूँ। हमारे साथ धर्मेश जी आज हमारे गेस्ट हैं। पहला एचएफसीएल हिमाचल फ्यूचरिस्टिक पर 133 के भाव पर खरीदा हुआ है, क्या अभी भी और खरीद सकते हैं? अगले 1 साल का नज़रिया है। और दूसरा है एक्साइड, बैटरी स्पेस का ये स्टॉक भी दमदार रैली दिखा चुका है, 578 पर खरीदारी की हुई है। दोनों स्टॉक्स कैसे लगते हैं आपको? HFCL की बात करें तो डेफिनेटली आई थिंक सो मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें तो पॉजिटिव है डेफिनेटली। इफ यू लुक एट द वीकली एंड द मंथली और क्वार्टरली चार्ट आई थिंक सो द थिंग्स लुक्स मच पॉजिटिव गोइंग फॉरवर्ड। अभी जो देख रहे हैं पॉजिटिव प्रॉफिट बुकिंग है, नथिंग रॉन्ग इन इट। आई थिंक सो इट्स मेक द थिंग्स मोर हेल्दी। तो वी बिलीव आई थिंक सो यस डेफिनेटली HFCL की बात करें तो 102 से 103 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 110 से 109 के बीच में आता है तो बाय करना चाहिए। ऊपर में टारगेट की बात करें तो 125 टू 125 is a near-term target for HFCL. So we mean to be positive for HFCL. Apart ठीक from है, HFCL, stocks was Excite. Excite की बात करें तो yes, definitely a long decadal breakout and the way the EV story is panning out for Excite, it looks more positive from the long-term perspective. Short-term, yes, definitely the run-up has been pushed up from 500 to 595. What we see is a retracement of a rally. So 525, 530 is a very strong support which we expect to hold. और ऊपर में टारगेट की बात करें तो 585 टू 595 का टारगेट होना चाहिए। तो दोनों स्टॉक आपको होल्ड करके रखना चाहिए। होल्ड करके चलने की सलाह यहाँ पर आनंद जी, इस आप एडवाइस को अडियर कर सकते हैं। वी हैव द नेक्स्ट कॉलर विद अस, शिवप्पा गुडलर इज विद अस, ही इज फ्रॉम कर्नाटका। शिवप्पा जी नमस्कार, टेल मी व्हाट्स योर क्वेश्चन सर? Okay, I think the call got disconnected. We'll take the next question. ये दिनेश गंभीर का सवाल है। बोल रहे हैं इनके पास येस बैंक के शेयर्स हैं 26.5 के लेवल पर, 6 महीने के लिए होल्ड करना चाहते हैं और आपसे एडवाइस मांग रहे हैं। अब अक्सर हम इन शेयर्स के ऊपर राय नहीं लेते, लेकिन क्योंकि नतीजे आए कल और अच्छे नतीजे आए और उसके बाद एक हमें पॉजिटिव रिएक्शन भी देखने को मिला आज, इसलिए मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि क्या कुछ साइंस हैं कि येस बैंक में अभी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने का सोचना चाहिए, और जिन लोगों ने खरीदा हुआ है उनके लिए क्या राय रहेगी? इन्वेस्टमेंट का तो पता नहीं, लेकिन yes, from the trading perspective, yes, definitely I think so. The stock likely to see a consolidation in this range of 24 to 27, 28. So more for consolidation post results, but in the near term, I think अगर आप स्टॉक का देखेंगे तो काफी चल चुका है। 16-17 रुपए से हमने 26-27 रुपए का भाव दिया। हमें लग रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म इज ओवरबॉट, so maybe it takes time to move for the next leg of upside. In the near term, more likely to see a consolidation in this range of 23 to 27.
27. ओके चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल आया है जीएमडीसी पर तियास का 422 पर खरीदा हुआ है। कैसा लगता है आपको ये स्टॉक और क्या करना चाहिए जीएमडीसी? Definitely, I think so. Mining space as metals and mining will remain to be positive for. और GMDC particular की बात करें तो definitely constructive to be positive for GMDC. Yes, the run up 200 से जो 450 का था बहुत फास्ट था और अभी हो रहा है तो कहीं ना कहीं थकान महसूस हो रही है स्टॉक को. It's more of consolidation after a sharp run up. So we believe I think so more of consolidation likely to continue for GMDC. But medium term की बात करें तो 470 to 480 is likely target for GMDC. So hold the position from the medium term perspective. ओके होल्ड करके चलने की सलाह जीएमडीसी पर। इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान में रखना चलना चाहिए। घनश्याम पाटिल का सवाल है एमटीएनएल पर। ये लगातार स्टॉक पिछले हफ्ते से एक तेज़ी में आ चुका है, आज भी ये स्टॉक तेज़ है और पूरे टेलीकॉम स्पेस में कहीं ना कहीं हमें बस दिख रहा है। तो एमटीएनएल जैसा शेयर हो गया, टाटा टेली जैसा शेयर हो गया, इन सब स्टॉक्स में काफ़ी लंबे, अभी एचएफसीएल का भी सवाल आया ही था आपके पास। टेलीकॉम स्पेस में एक बार फिर से बहुत लोगों की रुचि है। वोडाफोन आइडिया हाल फिलहाल में जब खबरों में था, लोग इसके ऊपर बहुत सवाल पूछ रहे थे। इंडस टावर्स में बहुत रैली आई। टेलीकॉम स्पेस पर आपका ओवरऑल व्यू क्या है और एमटीएनएल पर राय बता दीजिए, आज भी 8% ऊपर है। तो टेलीकॉम स्पेस इज डेफिनेटली आफ्टर टैरिफ रेट हाइक जो हुआ उसके बाद अगर देखेंगे आप सबके चार्ट से रिलायंस भारती और आइडिया आई थिंक सो ऑल आर रिमेन टू बी पॉजिटिव. यस अभी जो हो रहा है नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है. लोग कहेंगे रिलायंस टूटा है लेकिन यस डेफिनेटली द मूव हैज बीन फ्रॉम 2800 3200. What we see is a retracement happening even for the Reliance. So remain to be positive for telecom as a good space. Particular MTNL की बात करें तो yes, a part of a PSU. We remain to be constructive positive for even PSU as a sector. So yes, MTNL has seen a good run up. Stock अभी overbought है. यहाँ पे buy करना not recommended. Is 75 at a statistics of 95. I think so. It's not recommended to go long at the current levels. But yes, इसको मैंने काफी क्लोजली ट्रैक नहीं किया है तो मैं नीचे के लेवल्स इतना नहीं बता पाऊंगा. बट डेफिनेटली 65 to 60 is something a major support for MTNL. So if you are holding the position, trail your stop loss is a better way to ride the profit. तो मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के रखना चाहिए क्योंकि द मूवमेंट हैज बीन टू शार्प. जब भी फॉल आएंगे तो इसमें हो सकता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देंगे. तो ट्रेल योर स्टॉप लॉस एंड होल्ड द पोजीशन. सो दैट इज अ बेटर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एट द करंट लेवल्स. ओके गॉट दैट। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। ये सवाल आया है कैलाश अरोरा का। बजट से पहले बेस्ट इंफ्रा स्टॉक टू बाय, विच वन वुड यू सजेस्ट? So as a whole, I think so. L&T remains to be the leader for infra space. So definitely L&T should be there in the portfolio. Apart from L&T, I think so. जैसे कि आपने दिखाया था कि हाईवे साइड या रोड साइड में काफी एक्सपेक्टेशंस है तो एनसीसी हो गया, केएनआर कंस्ट्रक्शन या इवन पीएनसी इंफ्रा. आई थिंक सो दीस आर द स्टॉक्स आई थिंक सो वन शुड डेफिनेटली लुक आउट फॉर द मीडियम टर्म. ओके गॉट दैट। अगला सवाल ले लेते हैं। अवनीश चौधरी का सवाल है, मैंने इरिडा 265 पर खरीदा हुआ है, बाइंग की हुई है, 1600 शेयर्स हैं, क्या राय रहेगी इरिडा पर? IRIDA, again, the business model to it, definitely I think so that is lucrative and looks more positive from the long-term perspective. But yes, definitely in the short term, जैसे कि मैंने कहा कि run up has been too sharp. 200 से 330 I think so very fast. तो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं ओवरबॉट कंडीशन की वजह से स्टॉक में करेक्शंस हुआ है. Definitely 250 to 40 is a good level to re-enter in this stock for target of 295 to 300. So yes, in the near term, expecting the more of consolidation in IRIDA. ओके चलिए अगले सवाल के लिए राजस्थान चलते हैं। राहुल जैन हमारे साथ हैं। राहुल जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? अपना सवाल पूछिए राहुल। आनव आनव शेयर है 174 की प्राइस है। आनव का शेयर, आनव इंडस्ट्री 174 की प्राइस है, 2520। ओके क्या जानना चाहते हैं यहाँ पर? इसमें लॉस बहुत सारा हो रहा है, बहुत दिनों से पड़ा है शेयर। हाँ, आर्नव फैशन आप पूछ रहे हैं? हाँ यस मैम।
आर्नव फैशन तो अभी 51 रुपए पर चल रहा है और आपकी खरीद आप बता रहे हैं 174 की है। और इसका मैं अगर लॉन्ग टर्म चार्ट स्टडी करके देखूं तो आपने तो मेरे ख्याल से 2021 वगैरह में आसपास लिया था। यस मैम। 2021 से आप लगातार लॉसेस पे बैठे हुए हैं इस स्टॉक पर, काफी बड़ा लॉस हो रहा है इनको। चलिए आपको राय दिलवाते हैं। राहुल जी का सवाल आर्नव फैशंस पर है। धर्मेश जी कैसे मदद करेंगे इनकी? बहुत सारे लोग इस तरीके के स्टॉक्स में फंस जाते हैं। फिलहाल 51 पर चल रहा है और 174 की खरीद है। Sorry, madam, but I don't track the stock, so will not be able to recommend on this. क्योंकि मैंने देखा नहीं है तो ज़्यादा पता नहीं पाऊंगा। ओके, अनफॉर्चुनेटली राहुल जी हमारे गेस्ट ट्रैक नहीं करते इस स्टॉक को और इसलिए आपको वो राय नहीं दे पाएंगे। पर मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगी कि आप हमेशा गेस्ट के एडवाइस के बेसिस पर ही कुछ ऐसे स्टॉक्स में निवेश कीजिए जहां पर फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग हो, जहां पर चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश हो और गेस्ट की राय पर ही आप वहां निवेश करें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। फिलहाल आप दोबारा कॉल कर सकते हैं परसों चेक करने के लिए, क्योंकि कल बजट है इसलिए कल हमारा डेली कॉल स्पेशल शायद नहीं होगा और उसके ऊपर तब हम लोग बजट के एनालिसिस पर कर रहे होंगे। कुछ सवाल हम YouTube से ज़रूर लेंगे लेकिन हम डेली कॉल्स की कॉल्स कल नहीं ले पाएंगे क्योंकि कल बजट सेशन है। तो लेकिन इसके अलावा अगर हम आपको बताएं बहुत सारे सवाल जो हमारे पास आ रहे हैं, एक दो सवाल और ले लेते हैं। हमारे पास जो शो में अभी 5 मिनट और बचे हुए हैं। अगला सवाल है सुहेल सिद्दीकी का। ये डाबर खरीदा हुआ है इन्होंने 636 के भाव पर, राय क्या रहेगी? देखिए FMCG as a sector remains to be positive and जो हिसाब से बात हो रही है कि there will be some bit of a spending in rural, I think so. Dabur is a one stock which will be a biggest beneficiary. Yes, Dabur as a sector stock remain to be positive for definitely stock में limelight में नहीं था काफी 2 सालों से, एक trading range में था मतलब 570 to 640 650 and it managed to hold this level of 630 push breakout. तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि 630 620 is a good level to re-enter for Dabur. Remain to be positive for target of 675. So hold on the position in the budget. ओके, गॉट दैट। चलिए अभी आपको ये राय मिल चुकी है। अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे बिजनेस टुडे व्यूअर्स में से एक सवाल लेते हैं। ये सवाल आया है सरन राज का, पूछ रहे हैं पीवीआर आइनॉक्स क्या करंट लेवल्स पर बेच दें या फिर होल्ड करें? सरन राज जी आपने कहीं मेंशन नहीं किया कि आपने किस भाव पर खरीदा हुआ है। अगर आप वो डिटेल्स सेंड करते तो हमारे गेस्ट के लिए आपको राय देना आसान हो जाता। लेकिन ओवरऑल पीवीआर आइनॉक्स जो आज थोड़ा बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है, क्या इस स्टॉक में कहीं आपको पॉजिटिविटी नजर आ रही है धर्मेश जी? PVR Inox पॉजिटिव है डेफिनेटली। रनअप बस वही है कि रनअप काफी शार्प था, उसमें भी कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन है, बट अगर उसका व्यू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से डेफिनेटली इसको होल्ड करके रखना। ओके धर्मेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास शो पर हमारे साथ बने रहने के लिए। हमारे बहुत सारे दर्शकों के सवाल आज आपने लिए और ख़ास तौर पर उनको गाइड किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। इस तरीके के शो से हमारे सभी व्यूअर्स को डायरेक्टली पता चल जाता है कि टॉप गेस्ट उनको किस तरीके से रणनीति बनाने की और कौन से स्टॉक्स पर क्या राय दे रहे हैं। जिन लोगों के सवाल हम आज नहीं ले पाए उनके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन लगातार डेली कॉल्स पर हम दिन पर दिन आपके सभी सवालों के जवाब देने की चेष्टा करते रहेंगे। टॉप एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए।